हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले मैंने चैनल में बताया कि नहीं, बट आई स्टे इन द सिटी ऑफ कोलकाता। और जब हम पोल्यूशन के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो कोलकाता रैंक्स प्रिटी हाई। और मैं जब इस सिटी में शिफ्ट हुई थी तो मैं बहुत कंसर्न थी इस बात को लेकर, एंड स्पेशली जब वंशु हुआ तो देन आई वॉज रियली वरिड। Then one day I stumbled upon an article where NASA had done a study. उन्होंने एक क्लीन एयर स्टडी किया जहाँ उन्होंने कुछ प्लांट्स को इवेलुएट किया अबाउट their एयर प्योरिफिकेशन एबिलिटी, एंड दे रियली फाउंड दैट सम प्लांट्स डू हैव नॉट ओनली द प्लांट्स, उसमें जो सॉइल होते हैं, उसमें जो हम मैनुअर डालते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एवरीथिंग प्ले अ रोल. सो आई एनलिस्टेड दोज प्लांट्स एंड ग्रेजुअली ओवर द टाइम मैंने उन्हें कलेक्ट किया अपने घर में, एंड देन नाउ दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली. तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी विच प्लांट्स दे आर, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द बेसिक टिप्स टू मेंटेन अ इंडोर प्लांट so that they survive longer as well as healthier. So let's begin. I am Vidya and I am a mother of a 2-year-old. A child brings a lot of joy and happiness to your life and to your home. That is why it's Mom, I am home. हमारी आजकल की लाइफस्टाइल में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, all tend to emit harmful vapors which pollute our indoor environment. And these air purifying indoor plants tend to remove all such chemicals from our home. So to begin with, the first plant in my home is rubber plant. This has dark huge leaves, इसलिए these are very low maintenance plant and this can thrive even in less water. क्योंकि इसके leaves thick होते हैं, that is why they tend to store water. So they can thrive even in less water. इसकी leaves एकदम shiny, beautiful होते हैं and they look very elegant. Rubber plant tend to remove formaldehyde-like chemicals from indoors. A tip that here I would like to give is आप intermittently spray करते रहें या mist करते रहें leaves को, ताकि जो dust का layer settle हो जाता है leaves पर, आप उसे remove कर सकें. This tend to increase the air purification power of that plant. Not too frequently but at least once in a week. और जब आप लीव्स को स्प्रे करते हैं तब उसमें ऑर्गेनिक फोलियर स्प्रे भी मिक्स कर दीजिए so that the plant can also get essential nutrients. This helps in the healthy growth of the plant. Plus it brings up its natural bright beautiful green color. So this is my next plant, that is weeping fig. मैंने अरुण से कहा था I want a tree inside my house. मेरा हमेशा होम डेकोर करते समय एक कॉन्सेप्ट रहता है दैट आई शुड फील लाइक आई एम आउटसाइड व्हेन एक्चुअली आई एम इनसाइड द हाउस. मेरा बस चले तो आई विल मेक इट इनटू अ इंडोर जंगल, बट आई स्टे इन अ रेंटेड हाउस सो देयर आर लिमिटेशंस. दिस इज़ ऑलमोस्ट अ मिनी ट्री. इसे मैंने बिल्कुल रॉ रखा है. इट इज़ नॉट मैनिक्योर्ड या मैंने इसकी कटिंग नहीं की है. Weeping fig is also an amazing air purifier. इसके leaves characteristic होते हैं, इनका एक droopy सा look होता है, थोड़े से नीचे की ओर झुके हुए. ये भी बिल्कुल low maintenance hardy plant हैं and इनका बोनसाई बनाना भी बहुत आसान होता है. इसे मैंने अरुण के ऑफिस एरिया में रखा है. इसी रूम में एक्चुअली हमारा प्रिंटर वगैरह यूज़ होता है. सो इन दिस रूम ओनली आई हैव केप्ट मोस्ट ऑफ माई प्लांट्स. So the tip here is try to keep your indoor plants in a room where you spend most of the time of your day so that you can enjoy its effect also. Yes, plants do have a de-stressing effect on your mind. And if you are surrounded by them, then definitely you will feel the difference. So moving on, next plant is Syngonium. This I can tell you is really hard to kill plant. Syngonium की ढेरों varieties होते हैं and they tend to form vines, मतलब कि बेल बनते हैं उनके, and आप कुछ भी support दे दीजिए, they will climb up. And इन्हें propagate करना भी उतना ही आसान होता है. So the tip here is आप अपने plants से cutting कर कर उन्हें multiply कर सकते हैं. Just take help of a rooting hormone. Just apply this powder over the cutting tips and place it in a soil and sand mix. ये बिल्कुल economical होता है and you don't have to buy plants again and again. मैंने सिर्फ ये एक प्लांट खरीदा था and उसी के कटिंग से I have made 2 plants, one for my living room and one is in my kitchen.
यहाँ किचन में आई हैव अनदर वेराइटी ऑफ सिंगोनियम. दीज हैव पिंक वेन्स एंड अ लाइट ग्रीन कलर लीफ. फिर मैंने अपने पापा के पास से भी एक वेराइटी लाई थी. दिस हैज़ 3 pointed ends in one leaf. My papa is so passionate about gardening that he can start his own YouTube channel on gardening. उनका true passion है and I have learned so many things from him. Since childhood we are watching him do all this gardening stuff. So let's move. This is an umbrella plant. इसकी भी 2 वेराइटीज़ होते हैं. एक जो होता है वो फुल ग्रीन होता है एंड ये जो है दिस इज़ अ वेरीगेटेड वेराइटी, यानी कि इसमें मिक्स कलर है. इसका मैंने बोनसाई बनाया है बिकॉज दिस प्लांट इज़ ईजीएस्ट टू मेक इनटू बोनसाई. अदरवाइज बोनसाई बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एज वेल एज इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, नीड्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस. बट फ्रैंकली टेलिंग यू व्हाट आई फील इज़ इट इज़ अ वेरी क्रूअल प्रोसेस. इसलिए मेरे घर पर ज़्यादा बोनसाई नहीं है, सिर्फ ये है और एक अनदर वन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑफ अ पीपल ट्री. यू नो क्रूअल इसलिए क्योंकि बार बार उन्हें स्निप करते रहना पड़ता है, उनके ग्रोथ को स्टंट करके रखना पड़ता है. दो द रिज़ल्ट इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट इट डजंट फील गुड. यहाँ मैंने इसके रूट्स को एक स्लैंटिंग इफेक्ट दिया है. द ओवरऑल प्लांट लुक्स लाइक अ स्लैंटिंग ट्री अराउंड द स्टोन्स. Stones belong to a river and a small painted house. Umbrella tree का जो green variety होता है उसकी leaves जो होते हैं वो काफ़ी huge होते हैं. That is why it is called as umbrella tree. Then on this side I have kept a huge palm. This is Areca palm. इसकी leaves एकदम fan out होते हैं and they fill up any empty space. These are amazingly beautiful for room decor. Just add some light and it will create beautiful light leaf shadows on your wall. They purify your air and ये बिल्कुल low maintenance होते हैं. Only thing this plant is sensitive to is overwatering. It dies with overwatering. So the tip here is when we talk about indoor plants, overwatering is their biggest enemy. Because when we keep our plants indoor as there's no sunlight, so the soil tend to remain very moist for very long. और अगर हम constantly water add करते रहेंगे तो what will happen is root will begin to rot. Root सड़ जाते हैं और ultimately it will kill the plant. So let the soil dry up completely before you are adding water again. And to prevent underwatering, just don't allow the plants to wilt. उन्हें मुरझाने मत दीजिए. या फिर when you observe brown tips on the leaves, then also it indicates underwatering. Now next are the philodendrons. ये सिर्फ एक प्लांट नहीं, ये एक ग्रुप है एंड इसके अंदर ही बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं. ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है एंड बिल्कुल आराम से ये सर्वाइव कर जाता है इंडोर्स में विथ लीस्ट मेंटेनेंस. एंड दे हैव ब्यूटिफुल फोलिएज लीव्स. इतने खूबसूरत लीव्स होते हैं अलग अलग शेप के, अलग अलग वेराइटी में. दे ऐड दैट ट्रॉपिकल लुक टू योर लिविंग स्पेस. दिस इज़ वन वेराइटी ऑफ philodendron. I'll put all the names of the plants which I am showing, उनके common name as well as scientific name I will add in the description box below. You can check it out. This is a ground type. इसके vine नहीं होते and these are also very amazing air purifiers. I kept it over my almirah and they just need medium to low sunlight. Actually philodendrons को कभी भी direct sunlight में रखना भी नहीं चाहिए. उससे क्या होता है, उसके leaves burn हो जाते हैं. Also it tends to stunt their growth. So always keep them in a shady place. But yes, mist them regularly so that all the dust is removed from their leaves. And philodendrons की खासियत ये होती है, इन्हें अगर आप larger pots में रखेंगे तो then their leaves will become huge and they will fill up your space. This is another variety. See here the new shoots are coming. This is a vine variety. यहाँ अगर मैं coir stick लगाऊंगी तो this will climb up.
मैंने जब इसे ख़रीदा था इट वॉज अ स्मॉल प्लांट एंड विद इन फ्यू मंथ्स इट्स लीव्स हैव टर्न सो ह्यूज एंड लार्ज. वाटर इट ओनली व्हेन इट इज़ ड्राई. I keep it near the door so that it gets indirect light or reflected sunlight. So the tip here is give your indoor plants some indirect or reflected sunlight. My morning routine begins with opening all the curtains in my house. कितना भी कम हो but at least some sunlight ज़रूरी है. इनडायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड सनलाइट का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है सीधी धूप पड़े, बट जैसे हम इस रूम को देखें तो यहाँ कोई भी लाइट्स नहीं जल रहे हैं, बट द रूम इज़ इनफ लाइटेड इनफ. इस रूम में सनलाइट इनडायरेक्टली दूसरी चीज़ों दूसरी बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, एंड दैट इज़ ओनली क्वाइट गुड इनफ. अगर आप एकदम ही थिक ब्लाइंड्स या कर्टन्स लगाएंगे और सिर्फ जो आर्टिफिशियल लाइट यानी कि ट्यूब लाइट या बल्ब की रोशनी में प्लांट्स को रखेंगे तो देन दे वोंट बी हेल्दी एंड स्लोली दे विल डाई. Another thing my friends ask क्या वन शुड डिस्ट्रॉय नहीं करता प्लांट्स को, तो आई वुड से दैट मैंने स्टार्टिंग से ही उसमें एक बॉन्ड एक कनेक्शन डेवलप कर दिया है प्लांट से. मैं जब भी पानी डालती हूँ पौधों को तो उसे भी इन्वॉल्व करती हूँ. तो आई थिंक आई एज्यूम दैट कि उसे ऐसा लगता है दीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स एंड ही रेयरली यूज टू डैमेज दैम. और एक चीज़ है, आप जब भी प्लांट्स कोई भी प्लांट इनकॉर्पोरेट करें अपने फैमिली में तो गिव अ लिटिल बिट ऑफ इंटरनेट सर्च. कुछ प्लांट्स होते हैं विच आर नॉट किड फ्रेंडली या फिर पेट फ्रेंडली ऑल्सो, दे हैव सम पॉइजनस लीव्स और एनी कंपोनेंट्स. तो आप एक जस्ट डू अ क्विक इंटरनेट सर्च, या फिर अगर आप ऐसे प्लांट्स ले भी रहे हैं तो कीप इट एट हाइट या फिर जो रीचेबल ना हो बच्चों. Now the another variety of philodendron is a heart leaf philodendron. इसकी लीव्स बिल्कुल हार्ट शेप के होते हैं, ऑलमोस्ट लाइक मनी प्लांट, बट इसकी लीव्स थिकर होते हैं कंपेयर टू दैट. इसके भी वाइन्स होते हैं, इट क्लाइम्स इफ़ यू गिव अ सपोर्ट. दिस आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ आवर वेकेशंस व्हेन वी वेंट टू अ फॉरेस्ट एरिया एंड आई कलेक्टेड इट फ्रॉम नेचर. And the very recent addition to my philodendron collection is this one. So the tip here is whenever I bring a plant from nursery, I pick the best plant जिसमें बिल्कुल भी पेस्ट इन्फेस्टेशन ना हो, लीव्स बिल्कुल हेल्दी हो, न्यू शूट्स आ रहे हो, which tells actually the plant is healthily growing. और मैं नर्सरी में ही एसेस करती हूँ whether the plant has outgrown the pot. अगर ऐसा है तो मैं वहीं पर ही एक वाइडर या बिगर पॉट सेलेक्ट करती हूँ उस प्लांट को रीपॉट करने के लिए. And I prefer clay and earthen pots compared to plastic ones. 2 reasons हैं. एक तो अभी समर का सीज़न आ रहा है तो the earthen pots tend to keep the roots very cool. And also the earthen pots are very breathable. If you don't like the look of earthen pots, then you can place some jute outer covering. I used to paint my earthen pots with water-based color. जो बच्चों का वाटर कलर आता है मैं उसी यूज़ करती हूँ to paint them. I avoid using oil-based or acrylic paints because then they will become same like plastic pots क्योंकि they will block all its pores. Very similar to philodendron is a plant monstera. इसे split leaf philodendron भी कहते हैं. Its leaf tend to split as it grows and it is a beautiful tropical plant. This is a vine and you can see how it has climbed the coir stick. दिस हैज़ नैरो लीफ. इसका एक और वेराइटी होता है विच हैज़ लार्जर लीव्स. आपने ट्रॉपिकल पिक्चर्स में देखा होगा. नाउ दिस इज ZZ प्लांट. दिस इज ऑल्सो अ हार्ड टू किल एंड लो मेंटेनेंस प्लांट. आई फाइंड इट वेरी ब्यूटिफुल. इसके जो लीव्स का डिज़ाइन होता है एंड कलर, आई जस्ट लव इट. Water them only when they are dry. I have kept it over my fridge. Next is a peace lily. Peace lily का कहते हैं it has the highest air purifying capacity. Though it has some cons, it is toxic to pets and humans if eaten. Plus, I won't say that it is a low maintenance plant. इनकी वाटरिंग पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है. थोड़ा सा भी इफ़ वी मिस वाटरिंग देम तो उसके लीव्स जो हैं बिल्कुल मुरझा जाते हैं. दे गेट विल्टेड.
but they are good addition for your air purifier collection. Next is the Chinese evergreen plant और एग्लोनेमा. दिस इज़ परफेक्टली लो मेंटेनेंस प्लांट. इसे बिल्कुल थोड़ी सी मॉडरेट लाइट काफ़ी रहती है एंड इट रिमूव्स बेंजीन एंड फॉर्मल्डिहाइड लाइक केमिकल्स फ्रॉम एयर. इसके लीव्स एंड फोलिएज में पैटर्न्स होते हैं एंड दे लुक वेरी ब्यूटिफुल. मूविंग ऑन, नेक्स्ट आर द मनी प्लांट. मनी प्लांट, तो आई थिंक एवरी इंडियन हाउस हैज़ एटलीस्ट वन, growing in one corner inside a glass filled with water. ये लार्जर लीफ वेराइटी है. इसे डेविल्स आइवी या पोथोस भी कहते हैं. इसके बहुत लार्ज लीव्स होते हैं एंड दे कैन ग्रो इन एनी लाइट. ये अभी मैंने अपनी बालकनी में रखा है क्योंकि रिसेंटली मैंने इसमें कॉयल स्टिक ऐड किया था एंड कॉइल्ड इट अराउंड इट. So the tip here is anything stressful I do to my plant, then I let it be in fresh air for some time so that it gets adapted. Plus when I water such plants जिनके vines या बेल होते हैं, then I water and spray the stick also. I sometimes also do the foliar spray with the organic fertilizers which I told you earlier. Then मेरे पास एक और मनी प्लांट है वेरीगेटेड वेराइटी का. दिस हैज़ ड्यूअल कलर्स. इसकी ही मैंने कटिंग कर कर प्रोपिगेट किया है और अपने किचन में आई एम ग्रोइंग देम इन वाटर हाइड्रोपोनिकली. यू कैन सी इसमें रूट्स डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम द कटिंग्स. नाउ नेक्स्ट आर द एलोवेरा. एलोवेरा के अदर बेनिफिट्स तो मुझे बिल्कुल बताने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, बट येस एयर प्यूरिफिकेशन के एस्पेक्ट से भी दीज आर ऑसम. And about maintenance, only thing is that they need good sunlight. Yes, they are very sun loving plants. Just keep them near window जहाँ पर direct sunlight आती हो. इन्हें बिल्कुल minimal watering की ज़रूरत होती है because these are succulents. इनमें ऐसे ही water stored होता है. Well, succulents are very popular indoor plants. इसके बहुत सारे beautiful varieties होते हैं, but frankly I am not very big fan of succulents. मुझे पर्सनली ग्रीन लीव्स एंड फोलिएज वाले प्लांट्स पसंद आते हैं क्योंकि दे जस्ट फील अलाइव. ऑन द अदर हैंड सक्लेंट्स फील वेरी स्टैग्नेंट. नाउ अनदर अमेजिंग एयर प्यूरिफाइंग एंड लो मेंटेनेंस प्लांट इज स्नेक प्लांट. दिस इज ऑल्सो नोन एज मदर इन लॉस टंग एंड इसका साइंटिफिक नेम इज सैंसेवेरिया. This is also called as best bedroom plant because it releases oxygen and takes up all the carbon dioxide. ये बिल्कुल किसी भी कंडीशन, किसी भी लोकेशन एंड मिनिमल सनलाइट में सर्वाइव कर लेते हैं. They have thick shoots और leaves जो कि वाटर स्टोर करते हैं and they can survive in minimal watering. इसका एक स्मॉल वेराइटी भी होता है which has small leaves. You can see these leaves were eaten by a worm when we went for a travel. Another thing is when you are traveling, तब वो एक प्रॉब्लम हो जाती है. You have to be on the mercy of your neighbors या फिर your friends. I have my house owner जो ऊपर रहती है आंटी, she is also very garden enthusiast. तो वो हमेशा हेल्प करती हैं मुझे. I used to keep my plants outdoors and she used to water it. But yes, वो एक difficult aspect है. Then you have to think of some tricks to water your plants. Next plant is Dracaena. ड्रेसियाना के भी बहुत सारे वेराइटीज़ एंड टाइप्स होते हैं. दीज आर यूजुअली वेरी कलरफुल, पिंक, वाइट, ग्रीन कलर के होते हैं. कॉन्स इज दैट दे आर नॉट वेरी पेट फ्रेंडली, साथ ही बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं. दिस आई हैव बॉट वेरी रिसेंटली. सो द टिप हियर इज़ व्हेन आई ब्रिंग अ प्लांट होम फ्रॉम नर्सरी, आई लेट इट अडैप्ट ग्रेजुअली. मैं देखती हूँ कि नर्सरी में वो प्लांट कैसे रखा हुआ था, वेदर इट वॉज केप्ट इन अ सनी स्पॉट या फिर शेडी स्पॉट, एंड अकॉर्डिंगली आई कीप इट एट माई होम. If it was kept in the nursery in a sunny spot, I also keep it in the balcony, in my balcony in a sunny spot. Then I gradually keep it in a shady spot in my balcony. Then I slowly bring it inside, but in a sunny spot. फिर finally मैं उसे shady spot पे रखती हूँ जहाँ पर मैं उसे रखना चाहती हूँ. But yes, intermittently I give some doses of sunlight. If we bring suddenly the plant indoors, then they get a shock and it will affect their health. Let's move. Next are the spider plants.
स्पाइडर प्लांट हैज़ ब्यूटीफुल वाइट एंड ग्रीन शूट्स। ये भी बहुत अच्छे होते हैं एयर प्योरीफाई करने में, एंड दे लुक ब्यूटीफुल ऑन योर टेबल टॉप, या फिर आप इन्हें हैंग भी कर सकते हैं। इसमें से ऐसे लॉन्ग शूट्स निकलते हैं एंड शूट्स के एंड में छोटे छोटे बेबी स्पाइडर प्लांट्स डेवलप होते हैं एंड दे लुक वेरी अमेजिंग। मैं जब घर से पहली बार स्टडीज़ के लिए निकली थी एंड आई वाज स्टेइंग इन अ हॉस्टल, दिस वाज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ प्लांट विच आई बॉट फॉर माई सेल्फ। एक छोटे से पॉट में मैंने इसे अपने विंडो पे रखा था नियर माई बेड। दिस प्लांट इज़ ऑलवेज स्पेशल फॉर मी। Now I am telling you how you can grow your own air purifier from seeds. This is wheatgrass. Yes, मैंने इसे खुद घर पर ग्रो किया है और ये बिल्कुल आसान होता है। जस्ट आपको मुट्ठी भर गेहूँ चाहिए होता है, सोक इट ओवरनाइट। 24 घंटे में इसके स्प्राउट्स निकल आते हैं। देन पुट इट इन अ सॉइल इन अ पॉट। इन स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंटली वाटर करते रहें, अदरवाइज द स्प्राउट्स में डाई। पर जब शूट्स डेवलप हो जाएंगे देन they are very low maintenance. People used to harvest wheatgrass and उसका juice निकाल कर they used to drink because it is said that it detoxifies your body. Well, I have never tried it. I just grow it for air detoxification. ये बहुत ही easy होता है and very economical. They give beautiful lush green grass that not only works as air purifier but also is a beautiful decorative piece for your space. This will be almost there for a month. Just water them intermittently. I used to hang them on the wall or place it in my kitchen or bedroom. Now to give the tip about the nutrition of indoor plants. Potted plants are completely different from ground plants. Ground plants की roots जो होते हैं they can spread and find the nutrition. But potted plants there is limited space, limited soil and limited food. So we have to provide them with regular nutrition. एंड फॉर दैट मैं प्रेफर करती हूँ नेचुरल कंपोस्ट। ये मैं परचेज़ करती हूँ अपने लोकल नर्सरी से एंड आई डायरेक्टली एड इट टू द सॉइल। इसे वाटर में भी मिक्स कर सकते हैं एंड कैन फीड दैट वाटर टू द प्लांट्स। ऑल्सो आई रेगुलरली रिमूव द वीड्स। वीड्स टेक अप अ शेयर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर प्लांट्स। देन आई ऑल्सो फीड अ न्यूट्रिएंट मिक्स जो मैं बनाती हूँ लेफ्ट ओवर बनाना पील से। बनाना पील्स आर रिच इन पोटेशियम एंड पोटेशियम बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। जो लेफ़्ट ओवर बनाना पील्स होते हैं उन्हें चॉप कर कर एक बॉटल में पानी के साथ एयर टाइट क्लोज करके रख दें। बीच बीच में कैप को लूज़ करें ताकि जो फर्मेंटेशन से एयर प्रोड्यूस हुआ है वो रिलीज़ हो सके। कुछ दिन बाद बनाना पील्स पूरे फर्मेंट हो जाते हैं। देन आप उस लिक्विड को थोड़े और लिक्विड में डाइल्यूट कर कर अपने प्लांट्स को फीड कर सकते हैं। And about the bugs and insects, I just evaluate my plant leaves frequently. ऐसे इंडोर प्लांट्स में रेयरली बग्स आते हैं, मोस्टली दे सफ़र फ्रॉम न्यूट्रिशनल इश्यूज मोर। बट इफ़ आई फाइंड एनी बग देन आई जस्ट रिमूव द इन्फेस्टेड लीफ एंड गिव अ वॉश टू माई रिमेनिंग प्लांट। And if it is severe then take it to the local nursery for remedy. I don't prefer using insecticides myself at home or even outside. Basically, I just prevent it from happening. I keep my plants clean, remove all the decayed leaves, and I mist them regularly. प्लांट्स को चाहिए होता है थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा मैन्योर और थोड़ा सा लाइट, बस उतना ही काफ़ी होता है उन्हें थ्राइव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस हैं यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये बेबी को